Hello all, welcome to the new session of Artificial Intelligence and Machine Learning lecture series. So in this video we are going to discuss about the random forest algorithm, which is related to the classification as well as a regression problem. So if you have to build a machine learning model for classification and regression problem, so we can use this random forest algorithm. So this session is about the detailed discussion on random forest algorithm, how this random forest algorithm works for the classification problem as well as a regression problem that we have to discuss here. So let's start the today's session, which is related to the random forest algorithm. So these are the some important points related to the random forest algorithm. So we'll discuss one by one. So the first point related to the random forest algorithm is the random forest is a popular machine learning algorithm that belongs to the supervised learning technique. So here you have to understand that we are studying here डिफरेंट सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. सो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में दो टाइप्स हमने देखे, जिसमें क्लासिफिकेशन देखा और रिग्रेशन देखा. नाउ यू नो द डिटेल डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम. सो हियर इन केस ऑफ अ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम. सो जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम यूज इन अ क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम यूज इन अ रिग्रेशन, तो वो हम देख रहे हैं. सो ये जो रैंडम फॉरेस्ट अल्गोरिदम है, बेसिकली दिस रैंडम फॉरेस्ट अल्गोरिदम इज यूज फॉर द सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक, एंड दिस random forest algorithm is used for the both problem, we can say the classification as well as a regression problem. So here the second point is that it can be used for both the classification as well as a regression problem in machine learning. Now the third point is it is based on the concept of ensembled learning, or we can say here the ensemble technique. So here this is the important point related to this random forest algorithm, because this whole random forest algorithm concept is works on this ensemble technique, or we can say the ensemble learning. So इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ensemble learning इज एग्जैक्टली. तो और ensemble learning की कुछ जो डिफरेंट टेक्निक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, जिसमें हम बैगिंग और बूस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो which is a process of combination of multiple classifiers. So ensemble technique is nothing but the process of combining the multiple classifier. So ये कैसे होता है, ये combination of multiple classifier यूज़ करके हम मशीन लर्निंग मॉडल कैसे बिल्ड करते हैं, या फिर वो ensemble टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हम जब बैगिंग और बूस्टिंग देखेंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली आप अभी ये याद रखो कि ensemble technique is nothing but the process of combining the multiple classifiers, right, to solve the complex problem and to improve the performance of the model. Now basically what here we are trying to build a accurate machine learning model. हम अब जब भी कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं या हम उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा हमारा फोकस रहता है कि हम जो भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाए उसका एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिले. तो हम हमेशा वही ट्राई करते हैं कि जो भी मॉडल हम बनाएंगे वो हाईली एक्यूरेट हो. ठीक है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल इज नथिंग बट द एक्यूरेसी, राइट. सो हियर random forest is a classifier that contains a number of decision trees on various subset of the given dataset and takes average of improve the predictive accuracy of the dataset. So basically random forest algorithm क्या करता है कि जो dataset से कुछ सबसेट उठा के कुछ डिसीजन ट्री बिल्ड करता है, और नंबर ऑफ डिसीजन ट्री हम बिल्ड करके उसका एक एवरेज कंसिडर करते हैं या फिर मैक्सिमम वोटिंग कंसिडर करके हम उसे एज अ फाइनल प्रेडिक्शन के तौर पे हम उसे यूज़ करते हैं. वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा वो किस तरीके से वर्क करता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ वन डिसीजन ट्री, द रैंडम फॉरेस्ट टेक्स the prediction from the each tree based on the majority votes of prediction and predict the final output. So here instead of relying on a one decision tree, so here one more important thing here you have to remember, that is the random forest algorithm is nothing but the
combination of different or combination of multiple decision trees, right? So random forest के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि forest is nothing but the जिसमें बहुत सारी ट्रीज होती है. तो नाउ you know about the decision tree, how decision tree works. You know about leaf node, you know about decision node, you know about root nodes, right? सो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा अल्गोरिदम कि जिसमें नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज होगी. जो नंबर ऑफ डिसीजन ट्री मिलके वो बनेगा उसे हम कहेंगे रैंडम फॉरेस्ट अल्गोरिदम. सो ये जो लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है उसमें आपको वही आपको समझ में आ रहा होगा कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ डिसीजन ट्री, वन डिसीजन ट्री, तो सिंगल डिसीजन ट्री के ऊपर हम मतलब यूज़ ना करते हुए, उसके ऊपर रिलाई ना करते हुए, हम क्या करते हैं ना, एक ही ट्रेनिंग डेटा से नंबर ऑफ सैंपल्स उठा के मल्टीपल डिसीजन ट्री बिल्ड करते हैं. और वो मल्टीपल डिसीजन ट्री का जो आउटपुट होता है उससे हम मेजॉरिटी वोट्स कंसिडर करते हैं, उससे हम फाइनल प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो इट प्रेडिक्ट द फाइनल आउटपुट. वो कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा डिटेल में. लास्ट पॉइंट इज द ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट leads to higher accuracy and prevent the problem of overfitting. So here again you know now about the overfitting because हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा the overfitting condition and underfitting condition. Actually this is related to the error which is generated in a machine learning model. So if you have to reduce the error, that means we are trying to increase the accuracy. Now if you have to increase the accuracy, you have to reduce the error. So ये इसकी वजह से ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो समझना इम्पोर्टेंट था. सो लास्ट पॉइंट में यही है कि इफ यू आर बिल्डिंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ डिसीजन ट्री, अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ डिसीजन ट्री बनाओगे तो उससे क्या होगा ना कि आपका एक्यूरेसी आपको हायर मिलने के चांसेस है. और जो ओवरफिटिंग जो प्रॉब्लम आप मशीन लर्निंग मॉडल में फेस करते हो, वो ओवरफिटिंग प्रॉब्लम जो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द पॉइंट रिलेटेड टू द रैंडम फॉरेस्ट अल्गोरिदम. अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इस तरीके से ये जो सारे पॉइंट्स है वो उसमें मेंशन कर सकते हो. बेसिकली you have to understand that the random forest algorithm is nothing but the combination of multiple decision trees. So अगर आपको ओरल एग्जामिनेशन में इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप वहाँ पे इस तरीके से उसको आंसर दे सकते हो कि रैंडम फॉरेस्ट अल्गोरिदम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, राइट. सो हियर मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट slide. So here from this slide we are trying to see how the random forest algorithm works exactly. So here you can see the image. So here again we have a data set, past data set, because we are studying about the machine learning and machine learning is all about the past experience. So अगर आप जो भी मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हो उसे कोई ना कोई पास्ट डेटा हमें प्रोवाइड करना होता है, बिकॉज हियर वी आर स्टडिंग अबाउट द नॉन सिम्बॉलिक एआई. जब आपने अप्रोचेस टू एआई देखा होगा तो उसमें हमने नॉन सिम्बॉलिक एआई देखा था. जो नॉन सिम्बॉलिक एआई इज बेसिकली अ डेटा ड्रिवन प्रोसेस. सो नॉन सिम्बॉलिक एआई में आपका मशीन लर्निंग आता है. सो अगेन हर एक मशीन लर्निंग मॉडल के लिए आपको डेटा लगेगा. सो हियर अगेन वी हैव अ डेटा. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो डेटा होता है वो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. सो बेसिकली डेटा इज डिवाइडेड इनटू द ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा एंड वैलिडेशन डेटा. सो यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा होगा. तो 70% डेटा जो होता है वो ट्रेनिंग में यूज होता है और जो 30% होता है उसमें से 15% जो डेटा होगा वो वैलिडेशन के लिए यूज होगा और रिमेनिंग 15% वी आर यूजिंग फॉर द टेस्टिंग पर्पस, राइट. सो इस तरीके से आपका डेटा सब उसका सेग्रीगेशन होता है, जो भी डेटा आपको एज अ पास्ट डेटा मिलता है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रेनिंग डेटा, फॉरगेट अबाउट दिस टेस्ट डेटा. सो अभी रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा वो हम समझते हैं. जैसे लास्ट जब हम पॉइंट देख रहे थे इम्पोर्टेंट, तो उसमें मैंने आपको बताया कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज. सो बेसिकली जो भी 70% ट्रेनिंग डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें से कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स हम उठा के एक मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो बिल्ड करेंगे. उससे हम फर्स्ट डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे, जैसे डिसीजन ट्री नंबर 1.
ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग डेटा होगा, ट्रेनिंग डेटा 1, ये इसी ट्रेनिंग डेटा में से कुछ नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स होंगे जो कि यूज करके हम डिसीजन ट्री बनाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से इसी ट्रेनिंग डेटा में से हम कुछ और नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स उठाएंगे और सेकेंड डिसीजन ट्री बनाएंगे। उसी तरीके से ये सेम डेटा से, जो ट्रेनिंग डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वो यूज करके हम n नंबर ऑफ डिसीजन ट्री बना सकते हैं। ठीक है। और ये जो डेटा आप यूज करोगे ना, ये रैंडमली सिलेक्टेड डेटा होगा, मतलब कोई भी रैंडमली पॉइंट सिलेक्टेड हो गया वो एज ए ट्रेनिंग डेटा यूज करेंगे और उससे हम डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे। सो ऐसे n नंबर ऑफ डिसीजन ट्री अगर हमने बिल्ड कर दिए तो हर एक डिसीजन ट्री के लिए आपको उसका आउटपुट मिलेगा, राइट। सो अगर आपको ये आउटपुट मिल रहा है, नाउ हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप डिसीजन ट्री जो अल्गोरिदम है या फिर जो ये रैंडम फॉरेस्ट अल्गोरिदम है, वो कौन से प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग फॉर दिस फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और यू आर यूजिंग फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम। नाउ हियर आफ्टर बिल्डिंग द नंबर ऑफ डिसीजन ट्री and after getting the output from the number of decision tree, what next? If we are using this random forest algorithm for classification problem, we are going for the maximum voting। ठीक है। मैक्सिमम वोटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो आप क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो क्लासिफिकेशन में आपको कैटेगरिकल आउटपुट मिलता है। तो मान लो इसमें आपको ए कैटेगरी मिला, इसमें आपको ए कैटेगरी मिला और इसमें आपको बी कैटेगरी मिला, मतलब 2 कैटेगरी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जितने सारे डिसीजन ट्री आपने बिल्ड किए हैं ना, उसमें आपको मैक्सिमम वोटिंग काउंट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कौन से ग्रुप से आपका आउटपुट आया है डिसीजन ट्री का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 3 डिसीजन ट्री बिल्ड किए, फॉर एग्जांपल हमने 10 डिसीजन ट्री बिल्ड किए और उसमें से 7 डिसीजन ट्री का आउटपुट आया ए और 3 डिसीजन ट्री का आउटपुट आया बी। सो इसमें से मैक्सिमम कौन सा कैटेगरी है, मैक्सिमम ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका जो फाइनल प्रेडिक्शन होगा वो मैक्सिमम वोटिंग के बेस पे होगा। ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इफ यू आर यूजिंग दिस रैंडम फॉरेस्ट algorithm फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ what if you are using this random forest algorithm for regression, because this random forest algorithm we are using for the both problem, right, classification and regression। so classification के केस में आपको maximum voting कंसिडर करना है और रिग्रेशन की केस में आपको एवरेजिंग करना है, मतलब आपको मीन निकालना है। जैसे रिग्रेशन के केस में आपको आउटपुट मिलता है, न्यूमेरिकल आउटपुट और कंटिन्यूस वैल्यू होता है। तो मान लो जैसे ये अल्गोरिदम आप यूज कर रहे हो फॉर द फ्लैट प्राइस प्रेडिक्शन, तो फ्लैट प्राइस का आप जो भी प्रेडिक्शन होगा, मान लो पहले डिसीजन ट्री ने आपको बताया कि 50 लाख उसका प्राइस होगा, दूसरे डिसीजन ट्री ने आपको बताया 52 लाख का प्राइस होगा, तीसरे डिसीजन ट्री ने आपको बताया 54 लाख का प्राइस होगा। तो इन तीनों डिसीजन ट्री के आउटपुट का एवरेज हम करेंगे। मान लो जैसे 50 + 52 + 54 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिसीजन ट्री, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा एज अ मीन, एज अ एवरेज, वो आपका होगा फाइनल प्रेडिक्शन इफ यू आर यूजिंग दिस रैंडम फॉरेस्ट algorithm फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम, right? So this is the basic working of a random forest algorithm if you are using this random forest algorithm for both the problem like classification and regression, right? I hope आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। सो अगेन दिस इज द वन एग्जाम्पल, बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल आपका फिर से थोड़ा और डिटेल में वो जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो यू कैन सी हियर वी हैव अ वन डेटा सेट, राइट? So by using this data set, by using the number of random samples, we are trying to build a number of decision tree right here. So these are the decision tree number 1, decision tree number 2, decision tree number 3, and number of decision tree we can build, right? So वही सेम डेटाबेस से कुछ सैंपल उठा के हमने ये ऐसे कुछ डिसीजन ट्री बनाए। ये पहले डिसीजन ट्री का रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, ऐसे हमें n नंबर ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। अगेन वही सेम है, if you are using this random forest algorithm for classification, we are going for maximum voting or majority voting. If you are using this random forest algorithm for regression, we are going for the averaging and after that final prediction। क्लासिफिकेशन की केस में मेजॉरिटी वोटिंग, फाइनल प्रेडिक्शन, रिग्रेशन की केस में एवरेजिंग, मीन एंड फाइनल प्रेडिक्शन।
तो इस तरीके से आपका बेसिक जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम का वर्किंग है इस तरीके से होता है। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो ऑलरेडी आपने डिसीजन ट्री के केस में देखा है। ID3 एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं, इटरेटिव डाइकोटोमाइजर 3। तो उस केस में हम ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेशन एंड इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेशन हम डिसीजन ट्री बिल्ड करते हैं। सो हियर अगेन दिस रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, राइट। सो अगर आपको डिसीजन ट्री के बारे में नहीं पता है तो आप पिछले 2-3 वीडियो में हमने डिसीजन ट्री के बारे में डिस्कस किया, तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हो, उसके बाद ये रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम आप समझ सकते हो, ठीक है। Again, some important points related to the random forest algorithm here. Now, why we are using this random forest algorithm? So these are the some points that we can see why we are using this random forest algorithm. So if we are using this random forest algorithm, it takes a less time as compared to the algorithm. ये दूसरे algorithm से बहुत कम time लेता है for the prediction or for getting output. So it predict the output with the higher accuracy even for the large data set it run effectively or efficiently, we can say here. So here अगर आप नंबर ऑफ डिसीजन ट्री बिल्ड करते हो तो नंबर ऑफ डिसीजन ट्री अगर आप बिल्ड करते जाओगे तो आपको एक्यूरेसी मिलने के चांसेस बहुत हाई है। तो अगर आप रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम यूज करते हो तो आपको हाई एक्यूरेसी मिल सकता है विथ मिनिमम एरर और लेस एरर। एंड you can use this random forest algorithm for large data set also, right? And the third point is it can also maintain the accuracy when large proportion of data set is missing. If some data is missing in whatever data you have, and in that data if you are missing some values, like if you are missing some data, so this algorithm is also work accurately for missing data also, right? अगर कुछ डेटा जैसे वैल्यूज कुछ मिसिंग है तो उसकी केस में ये एल्गोरिदम आपको अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करके देता है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम। अगेन दीज आर द सम बेसिक एप्लीकेशंस वेयर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम वी आर यूजिंग। in banking sector we are using this random forest algorithm, medicine sector we are using this random forest algorithm, land use then marketing sector we are using this random forest algorithm. So अगर आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन तो आप इस तरीके से ये उसके एप्लीकेशन लिख सकते हो, बैंकिंग, मेडिसिन, लैंड यूज एंड मार्केटिंग, राइट। Now these are the some advantages of random forest algorithm. You can see here this random forest algorithm is capable of performing the both classification as well as the regression task. मतलब ये दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ लार्ज डेटा सेट विथ हाई डायमेंशनलिटी। वही जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वही सेम पॉइंट है ये, कि हाई डायमेंशनल डेटा को आप यूज़ कर सकते हो फॉर गेटिंग द हायर एक्यूरेसी। नाउ अगेन हियर इट एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल एंड प्रिवेंट द ओवरफिटिंग इशू। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इफ़ यू वांट द हायर एक्यूरेसी यू कैन यूज़ दिस random forest algorithm, and also by using this random forest algorithm you can prevent the overfitting condition, right? So this is the detail about the random forest algorithm. I hope ये जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है वो आपको सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, और ताकि उनको भी हेल्प हो जाए ये सारी चीज़ें समझने के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जो यूनिट्स है उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे वो जाके देख सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बैगिंग और बूस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।